Here we go. PNJ Kabaddi Academy up against Khokar Kabaddi Academy. It is a Pool A clash. Today is the last day of our Pool A matches. The top three teams will go through to the Super 6 stage. And we're coming to you live from the Future Fighters Kabaddi Academy in Gurgaon. Important match for both these teams because they want to try and make it through to the next stage. PNJ have given us moments of brilliance, and it's going to be important to see whether they can complete the job. Khokar Academy as well have given us young, talented players. This young man, Mohit, the captain in yellow for the Khokar Academy, and the captain, Mohit, also from the PNJ Academy in the orange and white jersey. So, Khokar Academy has won the toss. They've chosen court, and we're set for some scintillating kabaddi. This is the K7 Stage Up Kabaddi tournament, brought to you live and exclusive on Fan Code, brought to you by Kabaddi Adda. And this is the starting seven for the PNJ Academy. Watch out for number 5, Mohit. Himanshu has been excellent as a raider as well. Ronak, another one to watch out for. And the defense packed by Ashish, Vinay, Arun, and Mohit in the central role. Then the Khokar Academy. Number 7, Mohit is the one to watch, the captain. Ankit has been excellent as well, a tall young man. Priyank has been wonderful on the right corner. You've got Rahul on the left corner, Mandeep on the left in, Vikrant left cover, Ashish Kumar as the right cover. It's going to be a great match to watch. That is number 4, left cover, Mandeep. And he's got 92 raid points from a total of 193 raids. He'll want to increase that strike rate, but he's got 5 super raids. He likes to pick up the big points. Does Mandeep from the Khokar Kabaddi Academy. They'll be playing in yellow today. And up against them, it's these lads from the Parveen and Jasveer Kabaddi Academy, PNJ. And some good youngsters to watch in that lineup as well. Himanshu, certainly one of them. Mohit, Ronak Arya. Some good youngsters in the mix. Final words from the coaches before the boys get onto court and have to do the job themselves. This is the K7 Kabaddi tournament. Himanshu Virender is the raider to watch, and that's a very healthy strike rate. Over 60%, anything over 60%, very healthy. 9 super raids, more than 100 raid points. I hope he features in all of your Dream 11 teams. Plenty of points to be won, plenty of awards and rewards that you can get from playing Dream 11 right here, live on Fan Code, courtesy of Kabaddi Adda. So this match set to get underway. It is the PNJ Academy from right to left in orange, the Khokar Kabaddi Academy in yellow from left to right defending at the moment. PNJ to raid first, and who else but Himanshu to start proceedings, the lead raider for the PNJ Academy. You'll see the names pop up at the bottom of your screens. From right to left, it's the PNJ Academy. In yellow, the Khokar Academy. All 7 on the mat. That means the bonus line is active. Himanshu likes to look for the touch points. Empty raid to begin proceedings. Quiet as they are. And in comes the lead raider for Khokar Academy, Mandeep. Number 4. He'll be important to watch in this contest for the Khokar Academy. Both these teams in contention to qualify. And first tackle comes in. Good tackle from the cover region from both those defenders. Combined tackle, Mohit from the right cover doing a great job. So first points on the board for the boys in orange. And they will continue through Ashok Kumar, the raider. Number 12.
Still nothing really for the Raiders so far. But it's been a great showing so far in this K7 Kabaddi tournament. This is the stage up phase. The grand finale will be later in the year. And already so much interest from across the country from the Kabaddi viewing communities. Mohit Takran. He's been their lead raider. He is their captain of the Khokar Academy. Khokar Academy, of course, is run by Dronacharya awardee Khokar Saab. And that's why the Kabaddi players he churns out of the highest quality as well. Still no raid points in this encounter. Himanshu will want to change that. Do or die raid for the lead raider of the PNJ Academy. He's claiming it. He enters the lobby, claiming a touch on the right cover, and it's been given. Good work from Himanshu on that occasion. Let's watch this again. Runs across and looks to tag Ashish Kumar in the right cover. That's the first raid point of the match. Now the tall man, Ankit Baljit. As tall as he is, he's been brought down hard. PNJ Academy's defense doing a good job. They are the organized defense in this encounter. A few smiles on their faces. Watch out for number 3. Leaves his mark. Vinay in the left cover. He's one to watch for the future. This is the platform that these future Kabaddi stars will use to get to the Pro Kabaddi stage. And that's a big one. That's a really big raid. Number 1, Ronak Arya. Watch out for him. Dangerous raider. And that's a 2-point raid. Powers his way through. He thought he was in trouble at that stage. But he gets the arm right through. And that's brilliant work. PNJ Academy going along nicely. 5-0 versus the Khokar Academy. PNJ probably the favourites coming in. But it's been some start here. Incredible to watch. The onslaught early. Mohit, the lead raider, has no answers to that chain on the right corner. Excellent work from Arun Panwar. And he had the support. The all out so early in the match. Outstanding so far from this side. Really, really brilliant to watch. PNJ Academy, one of the best sides in this tournament. And they've continued the good work. First half action here in the K7 Stage Up Kabaddi tournament. PNJ Academy versus Khokar Academy. Hope you guys are all playing on Dream 11. Get your teams in. By now you should know who the favourites are. And there's plenty of action still to come. All the way through to the 8th of August. We will be here every day. Nine to nothing. And yet again, on the run, Mandeep gets the job done. Look at the technique he uses. Misses the right cover intentionally, then goes after the right corner. Great work from Mandeep. Now a bit of pressure. This defense needs to work, and this man needs to work. Mandeep picked up the first point. Now he's hammered down though. Look to go up against Himanshu. And he's not only a good raider, but he can defend as well. With the right corner gone, it was up to Himanshu to come in with the tackle. Goes into the ankles, double ankle hold. And instantly the rest of the defense pounce as well. Support from Ronak Arya too. Wow. Finally.
The defense for Kokar Academy coming alive. Watch out for that man, number 9. Left corner, Rahul. He was excellent in their previous match as well. Comes in with the ankle hold, the right cover coming across as well. Ashish Kumar. They need more of that, Kokar Academy. We've seen leads of this stature wiped out in no time. 8 point की lead, पर वो ज़्यादा तो नहीं है in the sport of kabaddi. We've seen that completely erased. Just like that. Wonderful defending. Now they're defending together as one unit, Kokar Kabaddi Academy. Priyank from the right corner, Ashish Kumar from the right cover. बहुत अच्छा combination tackle. First आशीष कुमार, फिर प्रियंक राइट कॉर्नर से, और ये ही चाहिए खोकर एकेडमी को. लेकिन इंजरी कंसर्न, आशीष कुमार राइट कवर, ही इज ऑन द ग्राउंड फ्लैट. और इस बार वापस मनदीप राइट रेडर है, बट अगेन डिफेंस एकदम मजबूत. लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर इस बार नंबर 2 Ashish goes in, ankle hold, and then support right side se. Arun Panwar from the right corner comes in instantly. For P&J Academy, Parveen and Jasveer Academy, Ashok Kumar, left raider, stocky in build, powerful through the legs, and takes away an empty raid this time. Nothing from it. 1 versus 6. ताकि बोनस लाइन भी एक्टिव है अंकित के लिए. इज अ टॉल रेडर. बोनस जब एक्टिव है तो अंकित यूज कर सकते हैं. He's got the height advantage, और वो हाइट एडवांटेज यूज करके finds the midline as well. 2 point raid खोकर एकेडमी के लिए. Very important points for the खोकर एकेडमी. अगर ये लीड ज्यादा हो जाते हैं फर्स्ट हाफ में, then life becomes difficult, but this is good. Himanshu, P&J की lead raider. Oh, opportunity. Mistake from Rahul. Tried to come from behind, but Himanshu saw it coming. एक बार और, let's take a look. There he comes. Silly effort. Very unnecessary from Rahul in the left corner. सात पॉइंट की लीड P&J Academy के लिए. And has he got there? I think he was off court already. Another good tackle. P&J Academy defenders look very organized. पहले ankle hold, फिर dash. Ankle hold from the left corner. Dash coming in after. This is unbelievable. First Super 8 of the match. And it goes to Ashok Kumar of the P&J Academy. Let's watch it again. 1, 2, 3 points with the kick, and then goes over the midline. The lead extends to 11 points halfway through the first half. We are here live and exclusive on Fan Code. This is Pool A action from the K7 stage up. He's claiming a touch. I think he's got the left corner. He was absolutely sure, Ankit Baljit. He's a tall man using his height to his advantage. The deficit now 10 points. Himanshu is the lead man to watch. He's been incredible to watch so far. अगर P&J Academy के बारे में हम बात करें तो हिमांशु बिल्कुल लीड रेडर है. इस बार वापस क्लेमिंग अ टच और पॉइंट दे दिया है P&J Academy को. देखिए, goes in, looks for the tall man Ankit, और backtracking skills weren't the best this time. Rahul,
लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर राहुल है, पर ऑलराउंडर भी है, and this is a strength that he possesses. Excellent work on the run, gets the points. Very good all-rounder Rahul. Left corner defender, and then converts himself into a raider as well. 17-8 the scoreline. Just over 8 minutes to go in the first half. P&J Academy leading by 9 points. Khokar Academy needs to come back strong. They have a good team, but they need to try and find a way through because Himanshu right now is troubling them. ये ही लीड रेडर है पीएनजे एकेडमी के लिए, हिमांशु मोहित, फाइनली कैप्टन ऑफ द खोकर एकेडमी. अगर कप्तान है तो यही चाहिए कप्तान से. More is needed from Mohit. Gets away from the attempted ankle hold from the left corner. Ashish defender. Mohit takes the points, and again the lead under 10. Silly tackle. फिर से mistake from the left corner Rahul. बहुत hasty challenges आ रहे हैं from the left corner Rahul. Patience is the key when it comes to defending. और अगर पेशेंस है तो अग्रेशन भी चाहिए, और इस बार अग्रेशन पीएनजे एकेडमी से. ये देखिए, राइट साइड से राइट कवर डिफेंडर पहले मोहित, फिर हिमांशु भी सपोर्ट के लिए, और अब हिमांशु रेडर की तरह. 1 versus 2 एडवांटेज इस सिचुएशन में सिर्फ रेडर के लिए, और ये एडवांटेज ले लिया हिमांशु ने. इंक्रीजेस द लीड, और अब ऑल आउट अपॉर्चुनिटी पीएनजे एकेडमी ऑरेंज और वाइट में. उनके लिए एक अच्छा मौका है ऑल आउट लेने के लिए. 21-9, just over 6 minutes left, and this is a sizable lead for the PNJ Academy. बोनस पॉइंट तो दे दिया है, और फिर टच पॉइंट भी दिया. ग्रेट वर्क फ्रॉम द कैप्टन ऑफ खोकर एकेडमी. ही इज कीपिंग देम अफ्लोट, और एक रिवाइवल भी. मनदीप वापस कोर्ट पर, लुक्स फॉर द किक, देन गोज फॉर द रनिंग हैंड टच. 1 versus 2, वापस एडवांटेज रेडर. ऑल आउट लेने का मौका है. जस्ट गेट्स रिड ऑफ वन मैन. Only targets the captain on the left corner, Mohit. And again increases the lead. Support nahi mil rahe hain is baar from number 4. The support is needed from Mandeep. Or is baar Mandeep raiding from the right side. Good backtracking skills. Excellent work. Excellent job from the young raider Mandeep. इस K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट में सभी प्लेयर्स अंडर द एज ऑफ 21, और ये अच्छा मौका है सारे प्लेयर्स के लिए टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्लेइंग प्रो कबड्डी. गुड वर्क दिस टाइम. 22-12 the scoreline, a lead of 10 points. Great to see this encounter come alive. 11-point lead for the PNJ Academy. Both these teams trying to find a place in the next stage of the competition, the Super 6. PNJ Academy are the ones out in front at this stage though. Good to see everyone wearing their masks in the stadium as well. I hope all of you at home are wearing your masks. Keep sanitizing yourselves and get vaccinated as soon as possible. There is a huge tackle on the right side. Another look at it. The early all-out needed. They've got the all-out. And now a 14-point lead for the PNJ Academy. The team in yellow, Khokar Academy,
struggling to find form at this stage. And really, really good to see the way that these two teams are performing on the big stage. It's an opportunity to go and do bigger things, as these players will find out soon. All the players under the age of 21. This is the future of Kabaddi. Live action back underway. P&J Kabaddi Academy in orange. Ronak Arya, one of their lead raiders. 26-12, 14-point lead. Excellent work so far. What an opportunity for these young players, though. All of them under the age of 21. Ronak Arya looking for the run and the kick. Defense not up to the task. Vikrant looking for the frontal block. इस बार मनदीप वापस राइट रेडर खोकर एकेडमी के लिए टर्न टंबल, लेकिन कोई फायदा नहीं. Defense has been too strong. Yet again, Mohit from the right cover. Support Vinay से मिल रहे हैं. Left cover, right cover combination tackle. $15-point lead. 3 मिनट बचा है पहले हाफ में. और खोकर कबड्डी एकेडमी has a real uphill task from here on. Ashok Kumar points to his name. Vinay has picked up points in defense. Himanshu ने point लिया है रेडर. और ये है कप्तान खोकर कबड्डी एकेडमी के लिए मोहित. नंबर 7 राइट रेडर, एक स्ट्रॉन्ग रेडर है, अच्छा ऑलराउंडर भी है. But this time looks for the back kick. Good effort from Mohit. यही चाहिए कप्तान से. Has to take the responsibility and control the game. He gets rid of Vinay, the left cover. You're watching all the action unfold right here, live and exclusive on Fan Code. Head across to Dream 11, put your teams in. Every day we've got matches for you at 10 a.m., 12 p.m., 6 p.m., and 8 p.m. So make sure you put your teams in. Plenty to be won on Dream 11. We've been putting all of our teams in on time as well. Watch this tackle. Chain tackle from the right corner. Priyank on the right corner has the support of Ankit as well. Khokhar Academy needs big tackles like that. This is the tall raider for them. Ankit. Not been very successful today though. He's been slow to turn. Ankit Baljit. And with just over 1 minute to go, so far it's been P&J that have dominated. But we've seen big comeback so far already in this K7 Kabaddi stage up tournament. And we're hoping to see Khokhar Academy come back strong. Khokhar Academy, home of Dronacharya Awardee, Khokhar Saab, and his boys doing a great job. That's better. That's what we want to see from Mandeep. 2-point raid, gets rid of two dangerous men. Ashok Kumar and Arun Panwar, the right corner defender, both out. Running, hand touch attempted. फिर डैश भी अटेम्प्ट किया था अशोक कुमार ने. लॉबीज अच्छे से यूज करके finds his way through to the midline. Much better from Khokhar Academy. That's what they need to do to come back into this match. What a tournament this has been so far. And what an opportunity for these young men to showcase their talent. And this is where the young talent is on display. Fabulous, fabulous efforts from Fancode and Kabaddi Adda to put this tournament together. Kabaddi is live in the country, and that is good news. 28-17 the scoreline. Just 30 seconds to go, and Himanshu continues the good work. Himanshu, P&J Academy की lead raider है, and he continues to score the big points. I hope you've all got him in your dreams.
because he's scoring big on court. So too this man, Mandeep, the best raider for Khokar Academy. Excellent raid. Running hand touch leke, lobbies use karke, into the midline, into his own half. Wonderful job. Technique ko dekho. Wow. That is fabulous work from Khokar Academy. And that is the end of the first half. It's been a half that is high from the Raiders. PNJ Academy controlling it 28-18 at this stage. 29-18, my apologies. But much of the damage was done by this young man, Himanshu. Number 9. He has been fabulous for the PNJ Academy, Parveen and Jasveer Academy. Leading comfortably at this stage. So there you go. 29-18 the scoreline at the end of the first half. 16 raid points to 15. लेकिन अगर tackle points देखें तो PNJ Academy dominating 9 tackle points to just 3 for the Khokar Academy. And that is where they need to improve. Defense में अगर और points मिल जाए Khokar तो they can certainly back in the second half. Second half action not far away now for us. And it's been a great day so far. Look at the highlights. Himanshu has been the wrecker in chief. He's the one doing most of the damage. And it's been dominated by the PNJ Academy. They are leading by 11 points. Defense बहुत ही मजबूत था. और raiding skills भी बहुत अच्छे थे. Ankit struggled, used his height to good effect at times. But start of the show, अगर हम first half देखा जाए तो has to be Himanshu. Mohit tried hard, fought valiantly. But for the Khokar Academy, there wasn't too much to write home about. Ron Akarya भी एक super raid मारा. Ankit continued the good work meanwhile. Wonderful, wonderful kabaddi so in this encounter. And the quality of kabaddi gotten used to in the K7 stage up tournament here. Live and exclusive on Fan Code. Brought to you by Kabaddi Adda. Remember to head across to Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube and follow Kabaddi Adda at the rate Kabaddi Adda, and also follow Fan Code. I'm going to hand you over in a couple of minutes to Aparna, who will join you for the second half of commentary. It's been a delight to bring you this game so far. And what a tournament it's been. It is the platform for the future Kabaddi stars to make a name for themselves and go forward. And they are taking it on and taking the opportunity with both hands. 3 teams from Pool A will move forward. These 2 teams battling to find a way through to the Super 6 stage. And at this stage of the game, Parveen and Jasveer Academy, PNJ, are definitely in the driver's seat. I'm going to take a breath and hand you over to Aparna Jana to continue the great work and take you into the second half. Thank you so 29 much, Suhail Chandu, Right. for the introduction. Hi everyone, I'm Aparna Jana here. आपके साथ खोकर कबड्डी एकेडमी और परवीन एंड जसवीर एकेडमी के इस मैच में मैच का पहला हाफ बहुत ही रोमांचक रहा.
बहुत ही शानदार गेम हमें देखने को मिल रहा है। परवीन एंड जसवीर एकेडमी अभी 29 पॉइंट्स के साथ है, खोखर कबड्डी एकेडमी 18 पॉइंट्स के साथ है। सुपर टैकल सिचुएशन है, मनदीप है रेड पर खोखर कबड्डी एकेडमी के से, और यहाँ पे खोखर कबड्डी एकेडमी के मनदीप ढकेलते हुए लेकिन पॉइंट्स नहीं ले पाए और कब्जे में आ गए हैं परवीन एंड जसवीर एकेडमी के डिफेंडर्स के। देखिए किस तरीके से यहाँ पे उनको ब्लॉक किया विनय ने। विनय को ढकेलने का प्रयास करते रहे लेकिन नीचे से उनके लेग्स पर पकड़ बनाई और मनदीप हुए मैच से बाहर। जर्सी नंबर 9 में हिमांशु रेड पर, हिमांशु पे एंकल होल्ड और एंकल होल्ड के साथ पूरा डिफेंस हिमांशु के ऊपर। हिमांशु को भी मैच से बाहर। एक तरफ खोखर कबड्डी एकेडमी के डिफेंडर्स यहाँ पे शानदार पॉइंट्स लेते हुए और दूसरी तरफ परवीन एंड जसवीर एकेडमी के भी डिफेंडर्स। सुपर टैकल अभी एक हमने देखने को मिला है और उसके बाद खोखर कबड्डी एकेडमी एक और बार सुपर टैकल सिचुएशन में। जर्सी नंबर 3 में प्रियांक रेड पर लेकिन खाली हाथ वापस जाते हुए। जर्सी नंबर 1 में खोखर कबड्डी एकेडमी से संकित रेड पर, माफ़ी चाहती हूँ। जर्सी नंबर 1 में परवीन एंड जसवीर एकेडमी से रौनक रेड पर खाली हाथ वापस गए। सुपर टैकल सिचुएशन है, मनदीप एक और बार मैट के अंदर। खोखर कबड्डी एकेडमी के मनदीप रेडर, हैंड टच का प्रयास, विनय पीछे गए। और ये देखिए किस तरीके से डैश मारा है, बहुत ही लाजवाब डैश जर्सी नंबर 2 आशीष के द्वारा। मनदीप खुद को संभाल नहीं पाए और सीधा लॉबी के बाहर। एक और बार देखते हैं, ये देखिए टाइमिंग और फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहा और इसी वजह से मनदीप को एक और बार मैच से बाहर जाना पड़ा। परवीन एंड जसवीर एकेडमी लीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुकी है। रौनक हैंड टच किया, एक और पॉइंट लेकर अपने खाते में। जर्सी नंबर 3 प्रियांक को मैच से बाहर भेजा। मोहित रेड पर, खोखर कबड्डी एकेडमी के कप्तान ऑलराउंडर मोहित, 5 का डिफेंस है, बोनस नहीं ले सकते हैं। खाली हाथ वापस जाते हुए मोहित। जर्सी नंबर 1 में रौनक आर्या एक और बार मैट पर। मैच का दूसरा हाफ चल रहा है, 16 मिनट 50 सेकंड का वक्त रह गया है इस मैच को ख़त्म होने में। 5 का डिफेंस है। रौनक अब तक इस मैच में 8 पॉइंट्स ले चुके हैं रेडिंग में। जर्सी नंबर 9 में खोखर कबड्डी एकेडमी से राहुल रेड पर टच किया और पॉइंट लेकर बहुत ही तेज़ी के साथ वापस। देखिए किस तरीके से वापसी करी। एक तरफ जा चुके थे शफल के दौरान, दूसरी तरफ मुड़कर आए और पॉइंट लेकर वापस गए। जर्सी नंबर 12 में परवीन एंड जसवीर एकेडमी से अशोक रेड पर शफल कर रहे हैं। जर्सी नंबर 9 और अरे यहाँ तो गलती हो गई। जर्सी नंबर 9 खोखर कबड्डी एकेडमी, राहुल डैश करने गए थे लेकिन पूरी तरीके से बाहर नहीं भेजा। एक और बार देखते हैं। ये देखिए, जी नहीं, ये वापस आए हैं। अब यहाँ पे हमारे रेफरी और ऑफिशियल्स वही बताएंगे कि डिसीजन फाइनल क्या होगा। क्या यहाँ पे ये पॉइंट मिला है खोखर कबड्डी एकेडमी को या परवीन एंड जसवीर एकेडमी को। रेडर हुए आउट, यानी कि खोखर कबड्डी एकेडमी को मिला 1 पॉइंट।
स्कोर का डिफरेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, सुपर टैकल सिचुएशन है। यहाँ पे मोहित आए हैं रेड पर, 3 का डिफेंस है। विनय, अंकित डिफेंस का कमान संभाले। आपको मैं बता दूं, यहाँ फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी में ये मैच खेला जा रहा है जहाँ पे कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है इस टूर्नामेंट के दौरान। K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट अंडर 21 प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, जहां पे अंडर 21 प्लेयर्स अपना स्किल्स दिखा रहे हैं। ये देखिए, अगर हम हाइलाइट्स में देखें तो किस तरीके से रौनक यहाँ पॉइंट्स ले रहे हैं। रौनक के अब तक इस मैच में 8 पॉइंट्स ले चुके हैं रौनक, परवीन एंड जसवीर एकेडमी के टीम से। विनय रेड पर, विनय एक डिफेंडर के रूप में खेलते हैं परवीन एंड जसवीर एकेडमी के टीम से। सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद है, यानी कि खोखर कबड्डी एकेडमी के पास एक मौका है ऑल आउट करने का। जर्सी नंबर 9 में खोखर कबड्डी एकेडमी से राहुल रेड पर। राहुल एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं, रेडिंग और डिफेंस दोनों में अपना आजमाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 के डिफेंस में मुश्किल हो सकती है। सुपर टैकल सिचुएशन है और यहाँ पे कब्जे में लिया डिफेंडर्स ने, यानी कि सुपर टैकल। जी हाँ, सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिले परवीन एंड जसवीर एकेडमी को। खोखर कबड्डी एकेडमी के पास एक मौका था कि इनको ऑल आउट के कगार पर भेजेंगे। एंकल पर अटैक किया जर्सी नंबर 2 ने अंकित, और उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट मिला और रेडर हुए ढेर। जर्सी नंबर 5 में परवीन एंड जसवीर एकेडमी से मोहित, जो कि उस टीम के कप्तान भी हैं और एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। K7 क्वालिफायर्स के दौरान भी मोहित का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, अपने पूल के बेस्ट ऑलराउंडर भी थे मोहित। K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट पार्टनर हैं फैन कोड, एसोसिएट पार्टनर है ग्रेवोलाइट, ऑर्थोपेडिक एंड फिजियो पार्टनर है A+ ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिक सेंटर, वेन्यू पार्टनर है फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी और ऑफिशियल पार्टनर है कबड्डी अड्डा। मैच की शुरुआत दोबारा हो चुकी है। यहाँ पे प्रियांक रेड पर हैंड टच का प्रयास किया, लेकिन जर्सी नंबर 5 ने उनको एंकल होल्ड किया और वहाँ से अपने आप को बाहर निकाल के 2 पॉइंट लेकर अपनी टीम के लिए सेंटर लाइन क्रॉस करी प्रियांक ने। देखिए किस तरीके से हैंड टच किया और उसके बाद जर्सी नंबर 5 में मोहित उनको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब रहे और इसी के साथ प्रियांक ने 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए लिए। परवीन एंड जसवीर एकेडमी 36 पॉइंट के साथ, खोखर कबड्डी एकेडमी 23 पॉइंट्स के साथ। मैच खत्म होने में सिर्फ 13 मिनट 30 सेकंड का समय बचा है और ये है डू और डाई रेड। विनर यहाँ पे रेड पर, 7 का डिफेंस है लेकिन यहाँ तो बोनस क्या, डिफेंस ने अपना जलवा दिखाया। जी हाँ, विनय को एक सामूहिक डिफेंस यहाँ पे हमें देखने को मिला। किस तरीके से डिफेंस, जर्सी नंबर 10 में विक्रांत आए और उसके साथ उनको पूरा सपोर्ट मिला, विनय को बाहर जाना पड़ा और इसी के साथ परवीन एंड जसवीर एकेडमी हुई ऑल आउट। टाइम आउट खत्म हुआ, दोबारा मैच शुरू हुआ। आखिरी 11 मिनट बचे हैं इस मैच को के खत्म होने में। हिमांशु रेड पर है जर्सी नंबर 9 में परवीन एंड जसवीर एकेडमी से। हिमांशु परवीन एंड जसवीर एकेडमी के एक लीड रेडर हैं। अब तक का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में हिमांशु का।
खाली हाथ वापस, और यहाँ प्रियांक आ गए हैं रेड पे जर्सी नंबर 3 में। हैंड टच का प्रयास, और हाँ, हैंड टच भी लग गया है, यानी कि 1 पॉइंट खोखर कबड्डी एकेडमी के खाते में। खोखर कबड्डी एकेडमी वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से प्रियांक तेजी से आए, जर्सी नंबर 10 पे हैंड टच किया और वापस। रौनक आर्या परवीन एंड जसवीर एकेडमी से रेड पर, और ये देखिए किस तरीके से रौनक को टैकल किया, सामने से आके ब्लॉक किया। जर्सी नंबर 11 में नवीन खोखर कबड्डी एकेडमी से। ये देखिए रौनक ट्राई कर रहे थे जंप का, लेकिन नाकामयाब, और पॉइंट मिला खोखर कबड्डी एकेडमी को। मनदीप खोखर कबड्डी एकेडमी से रेड पर। 5 का डिफेंस है, शफल करते हुए नजर आ रहे हैं मनदीप, और यहाँ मनदीप को टैकल कर लिया गया, सामने से, पीछे से और साइड से, तीनों एंगल से उनको अपने कब्जे में लिया गया। एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क, टीम डिफेंस। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों तरीके से उनको अपने कब्जे में लिया, और मनदीप हुए बाहर। और यहाँ हिमांशु को भी बहुत शानदार तरीके से डिफेंस दोनों ही टीम का इस टाइम पे पम्प्ड अप है, बहुत ही अच्छे स्किल्स दिखा रहे हैं। टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए एक ने पैरों पे अटैक किया तो एक ने अपर बॉडी पे। प्रियांक रेड पर अभी 1 पॉइंट लेकर गए थे और वापस आ चुके हैं। प्रियांक काफ़ी अजाइल लग रहे हैं, और यहाँ प्रियांक को मिला एक और पॉइंट। जी हाँ, प्रियांक एक ऑलराउंडर है। प्रियांक ने K7 क्वालिफायर्स में भी अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। ये लीजिए जर्सी नंबर 10 सामने आकर प्रियांक को टैकल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अकेले पड़ गए और प्रियांक काफ़ी तेज़ी से बाहर गए। विनय यहाँ पे रेड पर। सिर्फ 6 पॉइंट्स की लीड है इस समय पे परवीन एंड जसवीर एकेडमी के पास। परवीन एंड जसवीर एकेडमी 37 पॉइंट्स के साथ, खोखर कबड्डी एकेडमी 31 पॉइंट्स के साथ। प्रियांक एक और बार रेड पर, 4 का डिफेंस है। अब तक इससे पहले प्रियांक काफ़ी अच्छे रेड्स क्विकली पॉइंट्स लेकर जा चुके हैं। 4 के डिफेंस में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या प्रियांक पॉइंट्स लेकर आ पाएंगे अपनी टीम के लिए। खाली हाथ वापस जाते हुए विनय एक और बार रेड पर। परवीन एंड जसवीर एकेडमी से टाइम आउट का इशारा, परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने लिया है टाइम आउट। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। इस पेंडेमिक के दौरान ये कबड्डी टूर्नामेंट सभी प्लेयर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं। ये आज 5वां दिन है K7 कबड्डी स्टेज अप का, और ये आखिरी दिन है पूल ए के प्लेयर्स के लिए। इसके बाद डे आफ्टर टुमारो हमारे साथ होंगे पूल बी की टीम्स। यहाँ मोहित अपने रेड को वैलिड करके वापस आते हुए नरेंद्र आ गए हैं रेड पर। नरेंद्र जर्सी नंबर 8 में परवीन एंड जसवीर एकेडमी से। नरेंद्र की अगर हम अब तक के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टूर्नामेंट में 65 रेड पॉइंट्स ले चुके हैं अब तक, और यहाँ एक और पॉइंट
अपने खाते में ऐड करते हुए। डू और डाई रेड पर काफ़ी आसानी से ये पॉइंट लेकर आए, और वहीं दूसरी तरफ भी डू और डाई रेड शुरू हो चुका है। यहाँ प्रियांक है खोखर कबड्डी एकेडमी से रेड पर। 5 का डिफेंस है, डिफेंस बहुत संभल के खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रियांक को अपने कब्जे में लिया मोहित ने। अपर बॉडी पूरी उनके हाथ में और सीधा लॉबी के बाहर। ये देखिए किस तरीके से मोहित ने अपर बॉडी को छोड़ा नहीं, एंड तक प्रियांक को मैट से बाहर जाना पड़ा। रौनक आर्या रेड पर परवीन एंड जसवीर एकेडमी से। मैच के कुल 8 मिनट 50 सेकंड्स बचे हैं। प्रियांक आर्या खाली हाथ, सेकेंड हाफ चल रहा है इस समय मैच का। मोहित यहाँ रेड पर है खोखर कबड्डी एकेडमी से। मोहित ठाकरान, हैंड टच का प्रयास और यहाँ हैंड टच कामयाब। मोहित ने दूसरी टीम के कैप्टन मोहित को बाहर किया। इस मैच के दौरान दोनों ही टीम के कैप्टन्स का नाम मोहित है। मोहित ठाकरान खोखर कबड्डी एकेडमी से और मोहित जयपाल परवीन एंड जसवीर एकेडमी से। जर्सी नंबर 1 में रौनक आर्या रेड पर, परवीन एंड जसवीर एकेडमी के रेडर। मनदीप खोखर कबड्डी एकेडमी के रेडर मनदीप रेड पर। यहाँ पे 5 का डिफेंस है, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफेंस ओवरकम कर चुका है मनदीप के स्ट्रगल को। देखिए किस तरीके से दोनों एंकल को अपने कब्जे में लिया मनदीप के, और पूरा डिफेंस का सपोर्ट मिला मनदीप को, मैच से बाहर भेजा गया। डू और डाई रेड हिमांशु रेड पर आ चुके हैं। हिमांशु की अगर हम इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस की बात करें, अब तक दूसरे नंबर पे चल रहे हैं हिमांशु विद 89 रेड पॉइंट्स, और यहाँ एक और पॉइंट अपने खाते में ऐड करते हुए डू और डाई रेड में हिमांशु परवीन एंड जसवीर के रेडर। मोहित ठाकरान खोखर कबड्डी एकेडमी से। मोहित ठाकरान की अगर हम बात करें तो अब तक 40 पॉइंट इस टूर्नामेंट के दौरान ले चुके हैं। और यहाँ देखिए बीच से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डिफेंस काफ़ी एक्टिव था, सीधा मोहित को भी मैच से बाहर किया। 41-32 का स्कोर है इस समय पे। जैसे पिछले रेड पे मोहित ने दूसरी टीम के मोहित को बाहर किया था, इस बार वो चीज़ उल्टी हमें दिखाई दी। मोहित खोखर कबड्डी एकेडमी के रेडर को परवीन जसवीर एकेडमी के मोहित ने टैकल करके बाहर भेजा। यहाँ हिमांशु रेड पर 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल हो सकता है, लेकिन वो एडवांस नहीं खेल रहे हैं। खाली हाथ वापस। जर्सी नंबर 9 में राहुल रेड पर, राहुल जय भगवान। राहुल जय भगवान को बहुत ही शानदार तरीके से टैकल किया जर्सी नंबर 2 में आशीष ने। आशीष लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में खेलते हैं और अपने कब्जे में लिया एंकल होल्ड। और यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हुए हिमांशु, 2 का डिफेंस था, बीच में से निकले और खोखर कबड्डी एकेडमी को ऑल आउट की कगार पे ला खड़ा कर दिया है। आखिरी खिलाड़ी खोखर कबड्डी एकेडमी से विक्रांत इस टाइम पे मैट पर मौजूद है। विक्रांत के ऊपर काफ़ी बड़ी स्थिति है, उनको यहाँ पे ऑल आउट बचाना है, लेकिन नहीं। मोहित डिफेंस में मोहित बहुत शानदार चल रहे हैं इस समय पे। परवीन एंड जसवीर एकेडमी के कप्तान
कप्तानी के साथ साथ डिफेंस का पूरा उन्होंने अपने कंधे पे लिया हुआ है। जर्सी नंबर 1 में रौनक आर्या रेड पर। स्कोर डिफरेंस वापस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 32 पॉइंट्स खोखर कबड्डी एकेडमी, परवीन एंड जसवीर एकेडमी 47 पॉइंट्स। मैच के आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, 4 मिनट 30 सेकंड्स का स्कोर टाइम बचा है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बीच से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विक्रांत एंड टीम बहुत ही शानदार टैकल। अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को एक साथ अपने कब्जे में लिया। प्रियांक ने एक और शानदार रेड। प्रियांक के मैट पे आने के बाद ही पॉइंट्स लेना वापस शुरू कर दिया है खोखर कबड्डी एकेडमी ने। जर्सी नंबर 9 में हिमांशु, परवीन एंड जसवीर एकेडमी के लीडिंग रेडर। और अगर हम स्टैट्स की भी बात करें तो इस टाइम पे हिमांशु काफ़ी आगे चल रहे हैं। हिमांशु नंबर 1 पर आ चुके हैं इस समय परवीन एंड जसवीर एकेडमी के रेडर। अब तक के टूर्नामेंट में सबसे आगे चल रहे हैं हिमांशु 91 पॉइंट्स के साथ। अब प्रियांक है रेड पर, 5 का डिफेंस है। देखते हैं यहाँ पे पॉइंट्स ले पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल नहीं। डिफेंस परवीन एंड जसवीर एकेडमी का काफ़ी एक्टिव है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एक तरफ से अगर अपर बॉडी पे अटैक आता है तो दूसरी तरफ से लोअर बॉडी पे भी अटैक आता है। यहाँ हिमांशु एक और बार नंबर 1 रेडर इस समय इस टूर्नामेंट के चल रहे हैं हिमांशु। मैच के आखिरी 3 मिनट 20 सेकंड का समय रह गया है। K7 कबड्डी स्टेज अप का 5वां दिन। टाइम आउट का इशारा परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने टाइम आउट लिया है। डिस्कशन होगा, स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी। ऑपोजिट टीम के अगेंस्ट अभी काफ़ी अच्छी लीड बना चुके हैं। क्या यहाँ पे अभी आराम से खेलने के लिए बोला जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ खोखर कबड्डी एकेडमी के कोच सुनील सर मोहित ठाकरान एक और बार रेड पर। मोहित ठाकरान इस समय पे 9 नंबर पर चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में रेडर्स की लिस्ट में। किक का प्रयास, 6 का डिफेंस, बोनस ले सकते हैं। बोनस लेकर भी अपने टीम को अभी वो कम अपना स्कोर का डिफरेंस कम कर सकते हैं। 34 का स्कोर है, अभी काफ़ी बड़ी लीड है परवीन एंड जसवीर एकेडमी के साथ। डू और डाई रेड आ चुका है। रौनक आर्या रेड पर। आखिरी कुछ मिनट और यहाँ रौनक ने चकमा दिया डिफेंडर को। रेड मैट से बाहर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ खोखर कबड्डी एकेडमी के लिए अब यहाँ बहुत ही कम समय बचा है। उनको यहाँ पे पॉइंट्स लेने होंगे। मोहित ठाकरान कप्तान रेड पर आए हैं। बैक किक शफल करते हुए। क्या यहाँ मोहित पॉइंट लेंगे? जी हाँ, मोहित ने यहाँ पॉइंट लिया। दोनों ही मोहित काफ़ी एग्रेशन के साथ नज़र आ रहे हैं यहाँ। मोहित जयपाल आगे बढ़ के उनको डिफेंस करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे। मोहित ठाकरान को पॉइंट मिला। यहाँ हिमांशु गेम को स्लो करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पास काफ़ी लीड है, उनको पता है कि अभी वो गेम को स्लो कर सकते हैं। लेकिन वही खोखर कबड्डी एकेडमी के लिए बहुत ही कम समय बचा है। स्कोर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ मोहित दोबारा रेड पर आते हुए। बैक किक, एंकल होल्ड और यहाँ पे मोहित को भी मैट से बाहर भेज दिया। बहुत ही शानदार एंकल होल्ड का नज़ारा जर्सी नंबर 2 आशीष के द्वारा। एक और बार देखिए किस तरीके से एंकल होल्ड किया और साथ ही रौनक का सपोर्ट मिला।
मोहित ठाकरान हुए मैच से बाहर। हिमांशु टाइम ज़ाया करते हुए, उनको पता है उनके पास लीड है 15 पॉइंट की, यहाँ पे आसानी से मैच अपने हाथ पे है। 1 मिनट 20 सेकंड का समय रह गया है इस टूर्नामेंट का, इस मैच का। प्रियांक रेड पर, खोखर कबड्डी एकेडमी के रेडर प्रियांक, और यहाँ पीछे से उनको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रियांक ने एस्केप किया। 1 नहीं 2 पॉइंट इकट्ठे लेकर वापस आए। देखिए मोहित यहाँ काफ़ी आगे बढ़कर खेल रहे हैं, एडवांस टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस वजह से बार बार उनको बेंच पर जाना पड़ रहा है। और यहाँ डू और डाई रेड आ चुका है रौनक आर्या परवीन एंड जसवीर एकेडमी से रेड पर। मैच का आखिरी 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। रौनक आर्या को यहाँ पे टैकल करने आए जर्सी नंबर 8 में आशीष, और उनके साथ थे विक्रांत। 2 डिफेंडर एक साथ मैच से बाहर। गलती करी, आगे बढ़कर टैकल करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे, और यहाँ पॉइंट्स का डिफरेंस अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। मोहित ठाकरान रेड पर आए थे लेकिन उनको भी मैच से बाहर। आखिरी कुछ सेकंड्स का समय बचा है, और यहाँ परवीन एंड जसवीर एकेडमी, खोखर कबड्डी एकेडमी के प्लेयर्स को एक एक करके चुन चुन के मैच से बाहर भेज रहे हैं। रौनक आर्या, आखिरी कुछ सेकंड्स का समय बचा है। यहाँ एंकल होल्ड का प्रयास लेकिन नाकामयाब। जर्सी नंबर 9 में राहुल हुए मैच से बाहर। राहुल की बात करें तो राहुल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था खोखर कबड्डी एकेडमी के लिए K7 क्वालिफायर्स के दौरान, लेकिन यहाँ इस समय चलते हुए नज़र नहीं आए। आखिरी और यहाँ मैच की समाप्ति। परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने इस मैच को 54-38 के स्कोर के साथ जीत लिया है खोखर कबड्डी एकेडमी से। कुछ ऐसा ही नज़ारा था इन दोनों टीम के बीच इनके पिछले भिड़ंत में भी, जहां पे परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने 20 पॉइंट की लीड के साथ खोखर कबड्डी एकेडमी को पछाड़ा था। परवीन एंड जसवीर एकेडमी के लिए एक और जीत। रेड पॉइंट्स की बात करें तो परवीन एंड जसवीर एकेडमी ने 24 रेड पॉइंट्स लिए हैं और वहीं 24 टैकल पॉइंट्स भी लिए हैं, यानी कि रेडिंग और डिफेंस दोनों बहुत ही शानदार चले हैं। वहीं खोखर कबड्डी एकेडमी की बात करें, हालांकि उन्होंने रेड पॉइंट्स ज़्यादा लिए हैं परवीन एंड जसवीर एकेडमी, लेकिन डिफेंस यहाँ बिल्कुल भी नहीं चला खोखर कबड्डी एकेडमी का। मैं अपर्णा जाना विदा लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ शाम को दोबारा आने वाले एक्साइटिंग मैचेस के साथ।